Hi students, good morning all of you. How are you students? I hope you all are well. Students, I am Vikas Kumar Tiwari, your math teacher, in front of you with new topic parallel lines and its property. Students, today I am going to teach you about parallel line. So, the first definition is what is parallel lines. तो पैरेलल लाइन क्या है? पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन है टू कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन का लाइन। हम कोप्लेनर का डेफिनेशन प्रीवियस क्लासेस में बताए हुए हैं कि कोप्लेनर लाइंस उसे बोलेंगे जहां पर हम किसी भी दो पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकें। व्हेन टू अ स्ट्रेट लाइन इज ज्वाइंड बाय अ when two points are joined by a straight line, then that surface is known as plane. टू कोप्लेनर लाइंस, वो एक ही प्लेन का लाइन होना चाहिए which do not intersect when produced either side are called parallel lines. That means according to definition, when two lines are produced infinitely in any direction and when they do not intersect anywhere, then the lines are called parallel lines. You may also define two coplanar lines having no common point are known as coplanar lines. Here L and M are parallel lines. L and M किसी भी लाइन को या तो स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है और नहीं तो एंड पॉइंट पर अगर नेमिंग हो तो कैपिटल लेटर से किया जाता है। तो हियर L and M are two parallel lines. L and M are parallel lines, so we write it L parallel M and read as L is parallel to M. When L is parallel to M, then we can also say that M is also parallel to L. Next is transversal line. What is transversal line? तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? तो अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन होने का कंडीशन यह है कि वो दो या दो से अधिक अगर रेखा को दो अलग अलग पॉइंट्स पर काटे तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अलग अलग से यहाँ सेंस है कि अगर जितने लाइन्स हैं उतना ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनना चाहिए। सपोज दैट हियर इज टू लाइन्स and when these lines is intersect like it, then this one is L, this one is M and this one is P, then P is not transversal. Why? Because L and M both lines intersect by this line P at a single point, so this is not transversal. But L and M लाइन है, अगर एट P इसे दो अलग अलग पॉइंट्स पर काटे तो नाउ P इज ट्रांसवर्सल लाइन फॉर L एंड M। क्लियर? तो जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस या नॉन पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर काटे तो उसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो टू लाइंस को जब ट्रांसवर्सल काटता है तो वहाँ 8 एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। देयर आर 8 एंगल फॉर्म बाय टू लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन, जिसमें 8 में 4 को हम लोग बोलते हैं इन 8 आउट ऑफ 8 4 लाइन्स आर इंटीरियर लाइन्स like 1, 2, 5, 6 and 4 lines are exterior
angle. 4 angles are exterior angles like 3, 4, 8 and 7. So definition of interior angles is angles lies inside the given lines. Suppose that L and M are two given lines और इसके इनसाइड में अंदर में कौन कौन एंगल है 1, 2, 5 एंड 6. तो एंगल्स लाइज इनसाइड द गिवन लाइन्स विथ ट्रांसवर्सल लाइन आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स. So angle 1, angle 2, angle 5, angle 6, 1, 2, 5, 6 are the interior angles. Next topic is exterior angle. What is exterior angles? Outside angles formed by two lines and transversal line are called exterior angle. Here is two lines L and M and P is the transversal line. So angle formed outside these two lines like 3, 4, 7, 8 are the exterior angles. Some defined terms related to transversal line and the two lines. The first definition is corresponding angles. What is corresponding angles? So definition of corresponding angle is the angles on the same side of transversal. देखो यहाँ L, M और P. L, M दो लाइन है जिसको लाइन P कट कर रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर. तो चार एंगल एक ही साइड में बनते हैं ट्रांसवर्सल के. 4 एंगल्स आर इन द सेम साइड एंड अदर 4 एंगल्स आर इन अनदर साइड. तो यहाँ बोल रहा है कि द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल P है तो इसके एक साइड में कितने एंगल बने 2, 3, 6, 7 आर नोन एज द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. लेकिन ये सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है. तो कंडीशन बोला व्हेन कब इफ बोथ लाई आइदर एबव और बिलो द टू लाइन्स. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का डेफिनेशन है पहला तो ये है कि उसे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होना चाहिए और दूसरा इसमें कंडीशन है कि सेम आउट ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल only those angles are corresponding which are either lies above मतलब देखो इस लाइन पर 6 ऊपर में है तो इस लाइन में 2 ऊपर में है और बिलो दैट मीन्स फॉर दिस लाइन 7 इज बिलो एंड फॉर दिस लाइन 3 इज बिलो. तो इनके पेयर को हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. सो if both lie either above or below the two lines are called corresponding angles. So pair of angle here above angle and here 5. So then 1 and 5 are corresponding. Similarly 4 and 8 are corresponding. 2 and 6 are corresponding. 3 and angle 3 and angle 7 are corresponding angles. So they are the example of corresponding angles. नेक्स्ट डेफिनेशन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाम से ही पता है अल्टरनेट मतलब आफ्टर गैप. इंटीरियर मतलब अंदर का. जो हम बताए कि 4 इंटीरियर बनता है और 4 एक्सटीरियर बनता है. तो वो अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल्स में हो उसका डेफिनेशन. तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि दे आर इंटीरियर एंगल्स. और अल्टरनेट बात करेगा तो 6 के बगल में है 5 तो दे आर नॉट अल्टरनेट. दे आर व्हाट एडजेसेंट एंगल. और 6 और 3 अल्टरनेट नहीं है. वाई बिकॉज दे आर इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो बचा कौन 4. तो वही डेफिनेशन है कि टू नन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स वैसे इंटीरियर एंगल्स जो एडजेसेंट न हो विच लाइज अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो जो एडजेसेंट एंगल न हो और दूसरा कंडीशन है और दूसरे साइड में लाइज करे. तो एक अगर 6 हम यहाँ लेते हैं तो इसके अपोजिट में नॉन एडजेसेंट कौन इंटीरियर बचेगा 4.
तो 6 और 4 एंड 3 एंड 5 को हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो टू नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स विच लाइज अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल are called alternate interior angles. This is the definition of angles, interior angles. So now pair of angle 4 and 6, 4 and 6, and angle 3 and 5, angle 3 and angle 5 are the example of alternate interior angles. Clear? Similarly, you can also define alternate exterior angles. Alternate exterior angles, according to name, the exterior angles, two non-adjacent exterior angles which lies opposite side of transversal are called alternate exterior angles, like 7, then 1, 2, then angle 8. They are the example of alternate exterior angles. Now next definition is co-interior angle. Co-interior angles are also known as allied angles, also known as consecutive angles. तो ये तीन नाम से एक ही एंगल को पुकारा जाता है। तो अगर कोई भी आए तो मीनिंग वही होता है, डेफिनेशन वही होगा। जैसे को इंटीरियर, को मतलब साथ में, इंटीरियर मतलब अंदर का एंगल, अलाइड, और कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है जो वैसा इंटीरियर एंगल जो लगातार एक ही दिशा में हो, तो वैसे को हम लोग बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स या अलाइड एंगल्स या उसे कंजिक्यूटिव एंगल्स। तो डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, टू नॉन एडजेसेंट, यहाँ भी बोला गया कि वो एडजेसेंट नहीं होना चाहिए। विच आर लाइज सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हम लोग डिफाइन किए टू नॉन एडजेसेंट एंगल विच आर लाइज अपोजिट साइड, यहाँ होगा विच आर लाइज सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। सो here is their interior angle. so यहाँ बोला गया कि टू नॉन एडजेसेंट माने 5, 6, 4, 3 नहीं होना चाहिए। विच लाइज सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में 6 और 3 ही आया। तो बोला गया कि ये जो पेयर ऑफ दिस टू एंगल्स हुआ 4 and 5, 3 and 6, दे आर द को इंटीरियर एंगल्स और अलाइड एंगल्स और consecutive angles. Note, तो simply they are the definition of the angles formed by two lines and its transversal. For parallel lines, पैरेलल लाइन के लिए ये एंगल्स का अपना एक प्रॉपर्टी होता है जिसे आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा फॉर 9th क्लास और फॉर फर्दर क्लास। फर्दर क्लासेस में भी इसके प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किए, तो पैरेलल लाइन में जब आएगा, इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस ओनली, नॉट फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन एंड दिस इज मोस्ट VVI प्रॉपर्टी, से रिमेंबर रखना है सबको। तो बोला गया है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन बनेगा, 1 and 5, 4 and 8। तो इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 and angle 3 is equal to angle 7. Next property of parallel line is pair of alternate interior angles are equal. तो alternate interior angle parallel line के केस में आपस में equal होता है। They are the theorem and I will prove this all theorems in
next class. So here is alternate interior angles is angle 4 and angle 6. So pair of alternate interior angle 4 is equal to angle 6, angle 5 is equal to angle 3. And the next property of parallel line is sum of the pair of co-interior angles is 180 degree. मतलब co-interior एंगल के एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है. जैसे हियर इज एंगल 4 and angle 5. Sum of these two angles is 180 degree. Similarly, angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree. Angle 3 plus angle 6 is equal to 180. Angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree. So they are the theorems related to parallel lines. Now next theorem is, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angle is equal. अगर जैसे अभी हम लोग थ्योरम यहाँ जो पढ़े कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है, तो उसी को प्रूफ करना है कि अगर पैरेलल लाइन दिया हुआ हो और वो ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा काटा जाए तो प्रूफ कीजिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. तो यार इज गिवन दिया क्या है, तो गिवन जो है, गिवन एंड टू प्रूव एक क्वेश्चंस में ही रहता है. तो गिवन है ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस and these lines are intersected by a transversal line R at these two distinct points P and Q. So then prove angle 3 equal to angle 5 and angle 4 equal to angle 6. तो इसके हर थ्योरम का प्रूफ दूसरे थ्योरम पर डिपेंड्स होता है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि अल्टरनेट को प्रूव करना हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज करना पड़ेगा. अगर सम ऑफ करना हो तो अल्टरनेट कर का यूज होगा या कॉरेस्पॉन्डिंग का यूज होगा. मतलब सब एक दूसरे पर डिपेंड्स है. तो वी हैव, हम लोग के पास क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1. हियर इज, लुक एट हियर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. वाई? अकॉर्डिंग टू वर्टिकल अपोजिट एंगल. एंड एंगल 1 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 5. किससे? बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड. Hence from equation first and equation second we get, हम लोग को क्या मिलेगा, तो look here, angle 1 is equal to angle 3 and angle 1 is equal to angle 5. तो since LHS are equal, both equation, the LHS of both equation are equal, so their RHS are also equal. Hence angle 3 equal to angle 5. Angle 3 is equal to angle 5. This is our proof. Angle 3 equal to angle 5. Similarly, we can also prove angle 4 equal to angle 6. This is the proof of theorem first. And next two theorem, remaining two theorems are proved in next class. So I will prove your remaining two problems, two theorems in next class, and this is your homework, that to remember parallel lines and the property of parallel lines and the defined terms related to lines and the transversal line. Okay.